प्रणाम। मैं टाइम साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, बड़ा सा नाम दीजिए। खैर, आज हमने जो टॉपिक चुना है मैंने, वो है डिजिटल लिविंग, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन रेस। वाई ओनली ह्यूमन रेस? बाकी रेस का हम पर्दा करके करेंगे क्या फ्यूचर का? Why should we waste our life in training non-humans? What a waste of life! ह्यूमन बर्थ इतनी मुश्किल से मिलता है, उसको हम लोग नॉन ह्यूमन को ट्रेन करने में लगा दें, वेस्ट कर दें। हम कहां जा रहे हैं? Are we trying to learn from animals, or we are trying to, I don't know what we are trying to. Khair, the future belongs to the human race. Future of human race is digital living. Well defined, very well defined. So we have to understand what is digital living. If it is our future, then we have to understand that, अंग्रेजी ज्यादा हो गई क्या? सॉरी, मिक्स लैंग्वेज चलेगी। वो चल रहा है ना आजकल, जो करंट ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है उसमें अंग्रेजी इज डोमिनेटिंग, बट फ्यूचर इज हिंदी। माइंड इट, द फ्यूचर इज हिंदी, नॉट अंग्रेजी, नॉट एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, नन। इट्स ओनली हिंदी लैंग्वेज which is going to be useful for digital living. Digital living, worth living, balance all are, you will live like a social animal. So if you want to lead your life as social animal, then it is not future. Future is living human life luxurious. So we have to understand what luxury is. Luxury कहते किसको है? अब हमें यह समझना होगा। लग्जरी कहते हैं जब आपकी सारी सेंसेस जो आपको मिली हुई हैं, आपकी अपनी है, पर्सनल है, एब्सोल्यूट पर्सनल है, नो रिलेटिविटी एट ऑल। एक्चुअली क्या है कि आप ना, ये रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट ने सबसे ज्यादा नुकसान दिया, और ये नुकसान रिलेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट पता नहीं किसने चलाया, बट रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट ने ह्यूमन रेस को एनिमल के रिलेटिव में रहना सिखाना शुरू कर दिया कि वी आर लिविंग, वी कैन थिंक बेटर देन एनिमल्स. That is what has been pushed into the brain of human race due to the concept of relativity. Whereas life is absolute. You are alive or you are dead. Once you are dead, then where is relativity? With whom, with what respect you are dead? डेड इज डेड. जो मर गया वो किसी से रिलेटिव डेथ होती है क्या कुछ? तो ये बात हमें समझनी होगी. डिजिटल का मतलब है एब्सोल्यूट, एंड लाइफ इज एब्सोल्यूट, एटलीस्ट फॉर ह्यूमन रेस. वैसे तो हर लाइफ में, हर जिस तरह का भी शरीर मिलता है उसमें लाइफ इज एब्सोल्यूट ऑलवेज. देयर आर 3 पैरामीटर्स which define your total life: space, energy and time. Only 3 parameters: space, energy and time. And in your body, in your
body, you know, there is only one component which is producing all these three elements. These three parameters are governed by that only one component in your body. Which is giving you time, which is giving you space, and which is giving you energy. All the three. Can you guess? That particular component is nothing but heart. Your heart gives you these three parameters: time, space, and energy. And all other activity is done by senses, sense organs, functional organs of your body, and all are dependent on the time, space, and energy provided by your heart. If your heart shrinks, you lose on space, so you get into problems. If your heart expands, you start losing your life, because you don't know what to do with this space, don't know how to handle space. It's not in your control directly. And third is energy. Energy is generated by your heart. If your heart is weak, it is developing energy, it is giving you energy, but insufficient. Why do you need energy? Time and space, okay. I mean, we have no control. But energy? Why do we need energy? Our functional organs, how will they perform without energy? How will your sense organs work without energy? So all your senses, whether functional or sensational, sensing, everything depends on energy only. And energy is generated by heart. And the regulation on heart is provided. You know, your heart is being, energy of your heart is regulated by yourself. What regulates your energy? It's not brain. Mind it. The energy regulation is done by your breathing. Well, अगर कोई काम करते करते थक जाते हो तो इसका मतलब योर एनर्जी है ड्रेन डाउन, सो यू स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ. सांस चढ़ जाती है, हांफना शुरू कर देता है इंसान. सो एनर्जी इज रेगुलेटेड बाय ब्रेथ. So, energy generation cannot be unlimited, it cannot be limited. It has to be generated as per the need of the action required. If you generate extra energy, you will lose your life. Very important parameter called lifespan. If you generate extra energy and not used, it will give you disease. तुम बीमार कब पड़ते हो? जब तुम्हारे पास एनर्जी है और तुम उसका यूज नहीं कर पाते हो. तुमने जनरेट तो कर दी पर उसका उपयोग नहीं करा. इसलिए रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
that you generate only that much energy which you require for executing a particular task. Very, very important. And regulation is through breath only. There is no other possibility. वो कहते हैं ना, कई बार कुछ ऐसा देख लिया और सांस चढ़ गया खाली देखने से। तो देखने के लिए भी तुम्हें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, और अगर एक्स्ट्रा हो गई तो बीमार करेगी। सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सुन तो लेते हो, समझ नहीं आता। समझ क्यों नहीं आता? बिकॉज एनर्जी कंफ्यूज थी, कम थी, जितनी चाहिए उतनी नहीं थी, या ज्यादा थी तो वो भी किसी काम की नहीं कहते। शोर मच रहा है, जोर से बोल रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आता है। तो जोर से बोलने का मतलब है इट हैज एनर्जी मोर देन व्हाट इट नीडेड, तो वो नुकसान देगी ही देगी। सिर दर्द हो जाता है, तुम कुछ बोलते हो तो सिर दर्द हो जाता है मुझे। उसका कारण यह है कि जो तुमने सुना उसकी एनर्जी तुम रेगुलेट नहीं कर पाए। सुनने वाले को रेगुलेट करनी पड़ेगी एनर्जी। बोलने वाले को तुम अगर कह रहे हो कि तुम धीरे बोलो तो तुम्हारी मूर्खता है ये। बोलने वाला अगर धीरे बोल रहा है तो तुम्हारे को अपनी एनर्जी उस हिसाब से रेगुलेट करनी है कि वो तुम्हें सुनाई दे, अगर तुम्हारे लिए कहा जा रहा है तो। इट इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ द पर्सन हु इज स्पीकिंग, इट इज अ फॉल्ट ऑफ द पर्सन हु इज लिसनिंग। कि उसका अपना रेगुलेटर खराब है, इसीलिए उसको किस बात पे शोर लगता है, किस बात पे नहीं लगता, उसको पता ही नहीं लगता, डिफाइन नहीं कर पाता। So regulator is very, very important for your living luxury. If you want to live luxurious life, then your regulator has to be perfect. डिजिटल लिविंग में रेगुलेटर की ही मेजरमेंट की जाती है। अगर रेगुलेटर तुम्हारा कितना ठीक है, इस थ्रेशोल्ड से नीचे है, तो यू आर नॉट परमिटेड। सो रेगुलेटर तुम्हारा अपना है, उसको तुम्हें समझना ही होगा। और तुम्हारे रेगुलेटर में अब क्या क्या आ गया? एक तो एनर्जी का कंट्रोल, कम ज्यादा करने का सिस्टम, और कम ज्यादा करने के सिस्टम में तुम्हें वेस्ट जो होगा उसको तुम्हें कंज्यूम करना है, उसको रिजेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि रेगुलेटर देखो, अगर आप जो पंखे का रेगुलेटर को देखो तो उसमें क्या क्या है? एक तो कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं, यानी कंपोजिशन। फिर जब तुम जो सामने वाले की एनर्जी का ज्यादा आ रही है और तुम उसको कम करना चाहते हो, तो बजाय इसके कि उसको कहो कि तुम बोलना अपना धीरे करो, अपनी एनर्जी को रेगुलेट करो। दैट इज मच मोर इजियर। उसके लिए क्या करना है? अपने कानों में थोड़ा सा ब्लॉक लगा देना है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर ना जाने दे। फिल्टर लगा दो। सो लर्न टू डेवलप फिल्टर्स, और वो तभी डेवलप कर सकते हो जब तुम्हें अपना कॉम्पोजिशन पता होगा। फिल्टर तो दिए हैं ऊपर वाले ने, जिसने भी कंस्ट्रक्शन की है ह्यूमन बॉडी की, उसने वो सारे फिल्टर दिए हैं, पर उनको मेंटेन कैसे करना है, उनकी मेंटेनेंस क्या है, उनको यूज कैसे करना है, और उनको वो चलते कैसे हैं, ये सारी जानकारी हमने खो दी या हमें मिली नहीं, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं। कुच्छल वेद
इसके अंदर सारी जानकारी है। अगर हम गीता को वेदों का सार माने तो कुच्छल वेद छठा वेद हुआ। नॉर्मली इसको पांचवा वेद कह देते थे, पर लिखा नहीं है कहीं पे पांचवा वेद। तो मुझे लगा कि आज ये बताना जरूरी है कि कुच्छल वेद एक छठा वेद है, सिक्स्थ वेद। तो पांचवा वेद कौन सा है? गीता। गीता तो सभी वेदों का सार है। नहीं, ये भी गलतफहमी है कि वो वेदों का सार है। वो वेदों का सार नहीं है, वो जिंदगी का सार है। वेदों में तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, चीजें प्रोसीजर दिए हुए करने के लिए। गीता बताती है क्या रिजल्ट मिलेगा। गीता वेदों का सार नहीं है। इस गलतफहमी से निकलो बाहर। गीता है वो पांचवा वेद कह सकते हो उसको, और कुच्छल वेद है छठा वेद। उसमें ये सारी जानकारी है जो मैं फिल्टर्स की बात कर रहा हूं, रेगुलेटर की बात कर रहा हूं, एनर्जी जनरेशन की बात कर रहा हूं, स्पेस, एनर्जी एंड टाइम की बात कर रहा हूं। तो ये सारी जानकारी कुच्छल वेद से मिली है। और इसको छठा वेद कहा गया है। इसी से हमें जानकारी मिली कि सेंसेस 5 और 6 भी होती है। जेंडर का क्या फर्क है? कुच्छल वेद में बहुत सारी जानकारियां ऐसी दी है, बहुत सारी जानकारियां ऐसी दी है जो योग को सिखाती है, मन और बुद्धि के योग को बताती है। योग का मतलब होता है मन और बुद्धि का योग, बुद्धि और शरीर का योग। बाकी सब योगा है। इसलिए डिजिटल लिविंग में अगर माइग्रेट करना चाहते हो तो अपने रेगुलेटर को समझना होगा, उसका यूज करना पता होना चाहिए, और दूसरे को कुछ कहने की बजाय अपने रेगुलेटर को चलाओ। अश्विनी जी, एक हमने यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है जिसकी स्थापना शायद आपकी ही मार्गदर्शन में हुई है, सेतु, स्पेस एनर्जी टाइम का यूनियन। तो जब हमारी एनर्जी लेवल अगर रेगुलेटेड नहीं है, हमारा रेगुलेटर खराब है, तो ये एनर्जी का कोई डिस्टरबेंस है, हमें सुनने में दिक्कत होती है या हम जरूरत से ज्यादा ऊंचा बोलते हैं, तो तब हमारे क्या स्पेस और हमारे टाइम पर भी उसका इफेक्ट आता है? आएगा ही। कैसे मतलब? किस कॉन्टेक्स्ट में, किस एस्पेक्ट में? जैसे एनर्जी अगर कोई बहुत ऊंचा बोल रहा है तो नेचुरली वहां का माहौल खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? माहौल उसका खराब होगा जिसको अपना रेगुलेटर ठीक नहीं है। जिसका भी रेगुलेटर खराब है उसका माहौल खराब हो जाएगा। वो तो खराब है ही है पहले से ही ना। अराजकता फैलाना, इसका मतलब ये है कि हम बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बोलते हैं। अरे ये क्या लॉजिक हुआ? अगले के अंदर, अगले का जो सिस्टम है, उसके जो फिल्टर्स हैं, वो जैसे काम कर रहे हैं वो तो वैसे ही काम करेंगे ना। ये क्या लॉजिक हुआ? ये कौन सा वो अपना सिस्टम खराब है और दूसरे को ब्लेम करो? यही तो चल रहा है कन्वेंशनल लिविंग में। सिस्टम अपना खराब है, ब्लेम दूसरे को करते रहो। क्यों? अपनी सेंसेस का पता नहीं है, अपने रेगुलेटर का पता नहीं है, उसको मैनेज कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, उसका पता नहीं है। करें क्या आप? अपने रेगुलेटर के कंपोनेंट ही नहीं पता। जब हमारे स्पेस या हमारे टाइम पर इफेक्ट आता है, क्योंकि सेतु का मतलब ये है कि तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, स्पेस, एनर्जी और टाइम। ये तीनों चीजें हार्ट देता है। कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड क्या होता है? ये तीनों चीजें हार्ट देता है। इसको समझो और उसका रेगुलेटर को
उसमें सिर्फ एनर्जी को रेगुलेट किया जा सकता है, बाकी किसी को किया नहीं जा सकता। और एनर्जी रेगुलेट करने के लिए ब्रीदिंग दी गई है। सिंपल सा सिस्टम है ह्यूमन रेस का, क्योंकि ये रेगुलेशन और कोई योनि में हो नहीं सकता। ये रेगुलेशन सिर्फ ह्यूमन रेस में हो सकता है। इस रेगुलेटर को तुम उपयोग सिर्फ ह्यूमन रेस में कर सकते हो और किसी रेस में संभव नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जिससे इस रेगुलेटर की करंट पोजीशन तुम नाप सकते हो, डिजिटली नाप सकते हो, थर्मामीटर की तरह से। जो भी तुम्हारे रेगुलेटर की पोजीशन है तुम उसी हिसाब से बिहेव करोगे। तो अपने रेगुलेटर को ठीक करो, करना ही पड़ेगा अगर डिजिटल लिविंग में आना है तो, नहीं तो नहीं आ सकते। प्राइम कंडीशन है कि तुम्हारे को तुम्हारे रेगुलेटर ठीक होना चाहिए। कैसे होगा ये ढूंढो, जहां पर ढूंढो कैसे होगा। देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ प्रोसीजर्स, बट होना है। की इज दैट अंडरस्टैंड योर रेगुलेटर एंड लर्न टू मेंटेन इट। पहले तो लर्न टू यूज इट एंड देन लर्न टू मेंटेन इट। लोग पता है, एक ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या चल रहा है मार्केट में, 5W 1 हाउ। 5 तो W है, व्हेन, व्हाई, हु वगैरह वगैरह बकवास फैला रखी है। एक ही चीज है रेगुलेटर। सबका मालिक कौन? वो रेगुलेटर। हार्ट मालिक नहीं है, मालिक रेगुलेटर है। रेगुलेटर और डेथ होती है, रेगुलेटर जब फेल हो जाता है तो डेथ हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है। हार्ट ही तो है। हार्ट तो जनरेट करता है, रेगुलेटर हार्ट कहां से हो गया? हार्ट जनरेट करता है 3 पैरामीटर्स, स्पेस, एनर्जी एंड टाइम। तो वो रेगुलेटर हार्ट में ही होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी हो, फिजियो वर्चुअल होता है रेगुलेटर। वो ब्रीदिंग से कंट्रोल होता है। तो इसलिए सबका मालिक एक है जो कहा गया है, वो इसी रेगुलेटर को कहा गया है। और वो कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर भगवान है, तो भगवान यही रेगुलेटर है। इसी रेगुलेटर को भगवान कहा गया है और इंसान के कंट्रोल में दे दिया। इसका जो कंट्रोल है इंसान के तो हाथ में दे दिया फ्री विल के रूप में। और बाकी योनियों में ये इंसान के कंट्रोल, उनके कंट्रोल में नहीं होता, वो फिक्स्ड है। वो रेगुलेटर कोई और रेगुलेट करता होगा, पता नहीं, या ऑटोमेटिक है, वो रेगुलेटर सेट है। कुत्ते में उसका रेगुलेटर सेट है, बिल्ली में उसका रेगुलेटर सेट है, कॉकरोच में उसका रेगुलेटर सेट है। मतलब सबके अपने अपने रेगुलेटर सेट है। सिर्फ इंसान का जो रेगुलेटर है वो उसको फ्री विल के रूप में ऑप्शन दे दिया भैया, जैसे चाहे मेंटेन कर ले इसको। तू बेटर भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है। फ्री विल है तो नेचुरली अब मर्जी होगी मेरी। लग्जरी आपको सिर्फ ये रेगुलेटर ही देगा। टोटल लग्जरी इफ यू वांट टू लीड इन योर लाइफ, तो लर्न टू हैंडल योर रेगुलेटर। ओनली चॉइस। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे इज टुडे। आज क्या तारीख है? तो आज 13वीं हो गई है कन्वेंशनल लिविंग की। मर तो कब गई थी पता नहीं, 13वीं आज हुई है। और इसीलिए आज मुझे ये रेगुलेटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, मजबूरी। नई स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग।
डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना है तो अपने रेगुलेटर को समझो, रेगुलेटर को यूज करना सीख लो और उसको यूज करो। अगर जिंदगी में लग्जरी चाहिए तो, और डिजिटल लिविंग के अलावा और कहीं पे लग्जरी मिलने वाली नहीं है, पक्की बात है ये। और रेगुलेटर सबका अपना अपना है, किसी दूसरे खराब कर सकते हैं तुम्हारा रेगुलेटर। एक बात और प्रिवेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी कि दूसरे तुम्हारा रेगुलेटर खराब कर सकते हैं, क्योंकि उनका अपना खराब है। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, कि कम से कम दूसरे तुम्हारा रेगुलेटर ना खराब करें। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी कष्ट है वो समझ लो कि तुम्हारे रेगुलेटर वीक होने के कारण है। ये बैलेंस और तत्व फलाना ठिकाना ये सब बकवास है। योर रेगुलेटर शुड बी परफेक्टली वर्किंग होना चाहिए। यू हैव टू कीप इट वर्किंग ऑल द टाइम, 24 आवर्स। और जितना रेगुलेटर को अच्छे से इस्तेमाल करोगे उतना ही इसकी लाइफ बढ़ेगी और कष्ट कम होंगे, लग्जरी ज्यादा होगी लाइफ में। लग्जूरियस लिविंग इफ यू वांट टू लीड, यू हैव टू मेंटेन योर रेगुलेटर वेल एंड नॉट ओनली मेंटेन, यूज इट। जितना ज्यादा जगह पर यूज करोगे उसका उतना ही सुखी रहोगे। लर्न टू यूज इट मैक्सिमम। यही एक प्रोडक्ट है जिसका जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी ही उसकी लाइफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और मेंटेन रखोगे तो दूसरा तुम्हारे रेगुलेटर को डैमेज नहीं कर पाएगा। तो सबका मालिक एक रेगुलेटर, सबके अंदर भगवान है रेगुलेटर। कण कण गया चूल्हे में, कोई मतलब नहीं है उससे, कोई काम नहीं आएगा। कण कण में भगवान है तो वो किसी काम का नहीं है। तुम्हारे अंदर जो भगवान बैठा है उसको पकड़ो। उससे काम करवाओ, फिर देखो तुम्हारी जिंदगी में लग्जरी आती है कि नहीं आती। कृष्ण जिसके साथ होगा उसकी जिंदगी में लग्जरी नहीं होगी क्या? तो कृष्ण तुम्हारे मन का प्रतीक है, षोडशी गोपाल। षोडशी गोपाल को रेगुलेटर पकड़ा दो अपना और इंश्योर करो कि वो पकड़ के रखे। वो छोड़ देता है, बहुत जल्दी भगा देता है, वो भगा देता है। वो रखता नहीं अपने पास किसी को, उसको रखना पड़ता है अपने साथ। भगवान को ना पकड़ना पड़ता है, उसको पकड़ के संभालना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको खरोच लगी, उसको लग गई तो तुम गए। रेगुलेटर डैमेज हो गया तो समझो बचा ही क्या, खाट पे, कोमा, ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी। ये सारी चीजें उस रेगुलेटर को ठीक करने के लिए है। टोटल सिस्टम, ऑल काइंड ऑफ सर्जरी, ऑल काइंड ऑफ पेन, डायरेक्टली कनेक्टेड विद। तो आज 13 तारीख 13वीं हो चुकी है, नई शुरुआत हो गई है। रेगुलेटर की जानकारी दे दी है मैंने। कुच्छल वेद छठा वेद है, उसके अंदर इस सिस्टम को यूज करने के सारे सिस्टम दे दिए गए हैं। आप उसको पढ़ो, लिखो, सोचो, समझो, जो तुम्हारी मर्जी है करो। तो आज के लिए इतना ही। टाइम कितना हो गया? 2 बज गए हैं। तो पगड़ी की रस्म पूरी हो गई, चाय पी के जाना।
और चाय अपने अपने घर में बना लेना। तो आज के लिए इतना ही। जय कृष्णांश। जय जय कृष्णा।